हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Is the urbanized is the plan of northern India. There is a most important point. There is no show here on screen the point, but there is a plan of the northern India. There is a most important here. The Himalaya also provide to India with the three river system dominated by the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. There is three rivers is the most important here, and this river is a made their respective region fertility and the attracted both settled and the revenders. There is the most important here. The Indo-Plan is include of regional of Punjab, Sindh and irrigated by their tributaries of the rivers Indus, and they form a base fertilizer plant which has made for the region and bread basket of the subcontinent. It is called a so because there is a reason is very important for a wheat cultivation. The statics is the location and the richness of the Punjab region has attracted to the foreground. There is a more important attracted by the foreigners and invited to the sign ascent past. The Sindh region is include their global Indo Valley and the Delta. It is the Indo plan which is the witnessed the development of on the urbanization culture is called Harappan culture for the first time in the subcontinent. See the lesson 3. There is a next lesson over. The Gangotri is a basin. Sieve is a more rainfall and the more humid than the Indo-regional. There is a Gangotri is a plant is divided into three sub-regions: upper, middle, and the lower. There is an upper plan of the rivers. The Ganges is a constitute. There is a western and southern part of the Uttar Pradesh. This region has seen active culture developments in the ascent period, and this was the inhabited by there is a Aryan in the later Vedic period, and during which there is a prestige agriculture. Their middle is a Gangetris plant, and which is the more fertilized and there is more rainfall, include to the eastern Uttar Pradesh and Bihar. It is a region where the Mahajanpad authority state like Koshal, Kasi and Magad were established in the 6th century BC. There are two main religions of India, Jainism and Buddhism, also took their birth here. There is the most important here is a Mahajanpad, is a like Koshal, Kasi, Magad. There is the Mahajanpad. There is 60th century BC. The lower is a Gangotri is a planet constitutes the Bengal region. Their northern part of irrigated by the Brahmaputra. Their high range in the regions created dense forest and the marshes land, which have made it difficult for the development of settlement in the beginning. But it is a coastal area is served in an important channel of the communication with other regions of their is a subcontinent and also with their southeast is Asia countries. Tamilpati and the Tamluk was on the important seaport of the these regions, which is a play a significant role in commercially activities. The Eastern India is normally referred to the coastal plain formed by the river is a Mahanandi on the other stem. The fertility is a coastal is a plan of their regions help in their development of agriculture, society and culture, and this come into contact with the Gangotri's culture from the time of the Nalanda and Mauryas is a 4th century BC. Around AD is a 1000 Orissa began to develop here a district linguistics and culture identity. That is the most important. The Western India referred to the regions of the modern state of Rajasthan and Gujarat. It is known for there now there is a black soil. There is the most important here. That is known as from to the black soil, which is the good for the cotton cultivations. There is the most important for the cultivation of the cotton. There is a black soil. The third desert of the Rajasthan is surrounding by the semi-arid regions was not of fertility as the Gangatric plant. As a result, this region was not much favorable for the cultivations. However, later in the 8th century AD, with the growth of the irrigation and mechanism in their form of the Persian
and the bees rehat many settlement is emerged here. Rajasthan is also the home of the Rajput clan. In the Gujarat, the fertilizer is the plant of the river is a Sabarmati is a Mahi and the Narmada and the Tapati as a broad is a purposely. There is a very long coastal lines to help to the Gujarat to develop is a contract with the other countries through its a port. The most important seaport of these regions has been to the Brikus, Kacha and the Brahus Broch. There is the most important here. यहाँ पर जो हम हिमालय के विषय में चर्चा कर रहे हैं उसमें हम उत्तर भारत की नदी तटीय और मैदान क्षेत्र के विषय में अगर चर्चा न करें तो यह अधूरी बात मानी जाएगी, क्योंकि उत्तर भारत का नदी तटीय मैदान किस प्रकार है तो ये हिमालय क्षेत्र के रीजन्स में ही आते हैं। हिमालय क्षेत्र के भारत की सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से जो है प्रभावित 3 नदियाँ तंत्र उपलब्ध कराए हैं। यानी देखा जाए तो यहाँ पर सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है हिमालय क्षेत्र से ही जो है उपलब्ध हुई है और इन नदियों ने अपने अपने क्षेत्रों को उपजाऊ बनाने के साथ साथ यहाँ के स्थायी निवासियों और हमलावरों को भी काफ़ी आकर्षित किया है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह से जो थी कंडीशन लोगों के रहने के लिए और उनके सुविधाओं के लिए फेवरेबल थी। इसलिए हर जो है हमलावर यहाँ पर ज़रूर अपना जो है प्रभाव डालने की कोशिश किया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्षेत्र है जो सभी हमलावरों को यहाँ आकर्षित किया था। कहते सिंधु नदी के मैदान में क्षेत्रों में पंजाब और जो है सिंध सम्मिलित है। यानी देखा जाए तो सिंधु नदी के मैदानी क्षेत्र में पंजाब और सिंध सम्मिलित है और सिंध नदी की सहयोगी नदियों की सिंचाई ने इस भू क्षेत्र को एक विस्तृत उपजाऊ मैदान बना दिया है, जिसके कारण यह क्षेत्र इस उपमहाद्वीप का खाद्य केंद्र भी बन गया है। और इस कथन का यह कारण है क्योंकि यह क्षेत्र गेहूं की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं पंजाब की सामरिक स्थिति और समृद्धि ने प्राचीन काल से ही विदेशी हमलावरों को काफ़ी आकर्षण किया है। सिंध नदी क्षेत्र में निचली जो है सिंधु घाटी और डेल्टा शामिल है। आपको पता ही होगा कि बहुत से हमलावर ने जो है हिमालय के क्षेत्रों का ही उपयोग किया और कारण यही था कि यहाँ की जो उपजाऊ भूमि थी और यहाँ पर जो समृद्ध थी लोग थे उसके देख के वो लोग काफ़ी आकर्षित होते थे और अपना जीवन यापन भी वो इसी क्षेत्र में करना चाहते थे। सिंध क्षेत्र में निचली सिंधु घाटी और डेल्टा शामिल है। सिंधु नदी के मैदान में ही इस उपमहाद्वीप में पहली बार हड़प्पा जो है संस्कृति की शहरी सभ्यता के विकास की झांकी देखने को मिलता है, जिसके विषय में जो है हम अगले चैप्टर में करेंगे। तो अगला चैप्टर भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का रहेगा, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उस पर भी हम विस्तार पूर्वक सभी बातों पे चर्चा करेंगे, तो अगला चैप्टर देखना मत भूलना। देखा जाए तो गंगा घाटी में सिंधु क्षेत्र की तुलना में अधिक वर्षा होती है और यह क्षेत्र अधिक नमी वाला है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों के 3 उप क्षेत्रों में बांट दिया गया है और ये है ऊपरी, मध्य और निम्न। गंगा नदी के ऊपरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के पश्चिम और दक्षिणी क्षेत्र शामिल है। कहते हैं प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र में जो है सांस्कृतिक विकास दिखाई देता है और उत्तर वैदिक युग में यह आर्य का निवास स्थान बन गया था और यहाँ रहकर उन्होंने खेती बाड़ी हर तरह के जो है कार्य करने में सक्षम पाए थे। कहते हैं मध्य गंगा की मैदान क्षेत्र अधिक उपजाऊ है, उसमें जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल है। यह वह क्षेत्र है जहां 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व कौशल, काशी और मगध जैसे महाजनपद ने अपना जो है क्षेत्र स्थापित किए थे। आपको पता ही होगा कि इस क्षेत्र में कौशल, काशी और मगध जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है राजाओं ने यहाँ पर राज किया था और भारत के 2 प्रमुख धर्म जैसे जैन और बौद्ध धर्म का भी जन्म इन्हीं क्षेत्रों में ही हुआ था। तो ये क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं धर्म के रिगार्डिंग भी और उपजाऊ क्षेत्र के अनुसार भी। गंगा के निचले मैदान क्षेत्रों में बंगाल क्षेत्र शामिल है और इसका उत्तरी क्षेत्र जो है ब्रह्मपुत्र द्वारा सिंचित क्षेत्र है। कहते हैं भारी वर्षा से यहाँ घने जंगल और दलदलीय भू विकसित हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है शुरू में यहाँ आवास विकसित करने में काफ़ी कठिनाई पैदा हुई थी, क्योंकि आपको पता है हिमालय के क्षेत्र है तो हिमालय के क्षेत्र में रहना संभव नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ठंड अधिक पड़ती है और सारे साल रहती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है जनजीवन को जो है सेटलमेंट करना बहुत बड़ी कठिनाई थी, लेकिन फिर भी जो है लोगों ने अपना जीवन यापन करने की हर तरह से संभवतः कोशिश किया है और यहाँ पर वो लोग रह भी रहे हैं। लेकिन इसके तटीय क्षेत्र इस उपमहाद्वीपों के अन्य क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच भी परस्पर संचार के महत्वपूर्ण मार्ग साबित हुए हैं। कहते हैं तम्र जो है लिपित अथवा तमलुक इस क्षेत्र का एक प्रमुख बंदरगाह था,
जिसने व्यापारिक गतिविधियों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए बंदरगाह का मतलब यही होता है जहां पर जो है सारे व्यापारी उतरते हैं और वहां से व्यापार शुरू करते हैं। देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो था कलकत्ता का जो समुद्र किनारा था वो बंदरगाह था, जहां से वो लोग जो सुचारू रूप से अपना कार्य संचालित करते थे। तो ये बंदरगाह बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां पर व्यापारी जो होते हैं अपना व्यापारिक गतिविधियों का जो है चरम सीमा पर पहुंचाते हैं। पूर्वी भारत को जो है महानदी और इसकी अन्य धाराओं द्वारा विकसित तटीय मैदानों के रूप में पहचाना जाता है, और इस क्षेत्र के उपजाऊ तटीय क्षेत्र जो है काफ़ी कृषि समाज और जो है संस्कृति विकास में बहुत काफ़ी योगदान दिया है। अगर देखा जाए तो नंद और मौर्य राजवंशों के काल में भी 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व यह गंगा सभ्यता के संपर्क में आया था। देखा जाए तो 1000 ईसा पूर्व पश्चात जो है आसपास उड़ीसा की अपनी भाषी और संस्कृति पहचान विकसित होने शुरू हो गए। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आता है कि नंद और मौर्य राजवंशों के कालों में जो है गंगा सभ्यता के संपर्क में आया और 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास उड़ीसा की अपनी भाषी और संस्कृति पहचान विकसित करने में ये सफल भी हो गए। कहते हैं पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में राजस्थान और गुजरात के आधुनिक प्रदेश सम्मिलित हैं। यानी पश्चिमी अगर देखा जाए भारतीय क्षेत्र में राजस्थान और गुजरात का एक अपना महत्वपूर्ण योगदान है। यह अपनी काली मिट्टी की वजह से विशेष पहचान रखता है। यानी काली मिट्टी इन क्षेत्रों में काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। ये एक बात याद रखना दोस्तों कि काली मिट्टी में कपास की खेती जो होती है बहुत अच्छी होती है। अल्पशुष्क क्षेत्रों में घिरा राजस्थान का जो है थार मरुस्थल गंगा के मैदानी क्षेत्र की तरह उपजाऊ नहीं था, इसलिए इस क्षेत्र को जो है कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं समझा गया। यद्यपि बाद में 18वीं शताब्दी में जो रहट तंत्र यांत्रिक की सिंचाई के विकास के बाद यहाँ अनेक प्रकार की आबादी का निवास शुरू हुआ, क्योंकि उन्होंने जो 8वीं शताब्दी में जो है राहट द्वारा जो है उन्होंने सिंचाई करना सीख लिया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है बहुत से निवासी जो है बस गए, बहुत से लोग आके यहाँ बस गए। गुजरात में साबरमती, माई, नर्मदा और ताप्ती नदी के उपजाऊ मैदान के कारण यहाँ बहुत ही समृद्धि आई है। गुजरात के अत्यधिक लंबे तटीय क्षेत्र में भी अपनी बंदरगाहों के जरिए अन्य देशों में संबंधित विकसित करने में भारी सहयोग भी दिया है, और इस क्षेत्र को बहुत ही महत्वपूर्ण जो है समुद्री तटीय बंदरगाह रहे हैं। कहते भावुक कक्ष और द मधुल भरोच इसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल के रूप में देखा जा सकता है।